السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میرا چونکہ موضوع نوجوان ہے، اس لیے نوجوان صحابہ کا عشق رسول آپ دیکھیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اس طریقے سے محبت کرنے والا دنیا کے اندر کسی رشتے کے اندر ایسی محبت کے جلوے بکھیرتے ہوئے کوئی نظر نہیں آئے گا جیسی محبت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار نوجوانوں کو اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تھی۔ کیا کبھی کسی باپ کے انتقال کے بعد کسی بیٹے کو آپ نے یہ دعا مانگتے دیکھی ہے کہ اے اللہ میرا باپ چلا گیا، میری آنکھوں کی روشنی چھین لے؟ کیا کسی بیٹے کو آپ نے ماں کے انتقال کے بعد اس طرح کی دعا کرتے آپ نے سنا ہے کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اب میری آنکھوں کی بینائی میرے مولا چھین لے؟ کیا کسی شوہر کو آپ نے اس طریقے سے دیکھا ہے جو بیوی کے انتقال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا کرے کہ مولا میری بینائی چھین لے، میں جس بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا وہ چلی گئی؟ یا کسی بیوی کو آپ نے اس طرح سے دیکھا ہے جو شوہر کے انتقال کے بعد بارگاہ سمدیت میں یہ دعا کرے کہ مولا میری آنکھوں کی بینائی چھین لے اس لیے کہ میرا محبوب چلا گیا؟ خدا کی قسم ان سارے رشتوں کے اندر آپ کو اس قسم کی دعائیں نظر نہیں آئیں گی، لیکن اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کی عقل کو دنگ کر دے گا۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے جن کے پاس ان کے بیٹے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر لے کر کے آئے کہ ابا جان اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا اور ہمارے درمیان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر گئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی اطلاع ملتے ہی حضرت عبداللہ ابن زید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بارگاہ سمدیت کے اندر انہوں نے دعا کی، اے اللہ میری بینائی اچک لے تاکہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو دیکھ نہ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی بینائی جاتی رہی۔ لائیے مجھے ایسا کوئی محبوب، لائیے مجھے کوئی ایسا محبت کرنے والا جو اس طریقے کی دعا اپنے محبوب کے وصال کے بعد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہو۔ یہ صرف صحابہ تھے، یہ رسول اعظم کے جانثار تھے، یہ نوجوان وہ صحابہ تھے جن کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع اس طرح سے روشن تھی کہ وہ صبح جلوہ مصطفیٰ دیکھنا پسند کرتے، شام کو جلوہ رسول دیکھنا پسند کرتے، جینا اپنے حضور کے قدموں میں پسند کرتے، مرنا اپنے حضور کے قدموں میں پسند کرتے۔ چنانچہ پروردگار جل جلالہ نے ان صحابہ کے قدموں میں پوری کائنات دے دی، اور جہاں سے صحابہ کرام گزرتے تھے اللہ تعالیٰ اس زمینوں کو ان کے لیے مفتوح کر دیتا اور وہ اس زمینوں کے فاتح بن جاتے۔ ان کے پاس بظاہر جسم پر بوسیدہ لباس ہوتا لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ان کے پاس اتنی توانائی اور طاقت ہوتی کہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں بھی ان کے سامنے لرزتی اور کانپتی دکھائی دیتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے نوجوانوں کو کتنی محبت تھی۔ آپ اندازہ لگائیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا، باپ بیٹے اور سارے انسانوں سے زیادہ جب تک کہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم کمال ایمان کے درجے تک فائز نہیں ہو سکو گے، اس لیے کہ قرآن نے غلبے کے لیے شرط رکھی ہے ایمان،
वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने ईमान ही की बुनियाद पर कामयाबी और कामरानी को मौकूफ रखा है। इसलिए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जानते थे कि अगर हमारे सीने में जब तक के ईमान कमाल की हद तक मौजूद नहीं होगा, उस वक्त तक कामयाबी हमारे कदमों का बोसा नहीं ले सकती। और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल ईमान के लिए ये फरमाया, जब तक के सारे इंसानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए सहाबा सारे इंसानों से ज्यादा, हत्ता के माँ बाप से ज्यादा और कायनात के हर इंसानों से ज्यादा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए एक और सहाबी के हवाले से आप देखें जिनकी उम्र कोई खास ज्यादा नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क उनके सीने में कितना मौजज़न था और कितना बसा हुआ था और कितना पेवस्त था कि अल्लाह अकबर। फ़ातिह मिस्र हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, कोई शख्स मुझे रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा प्यारा नहीं था। ये फ़ातिह मिस्र हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं। और ये बात याद रखना, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान की हयात तैयबा और उनके अक़वाल मबनी बर सिद्क़ हैं। वो कभी सच के अलावा कुछ नहीं कहा करते थे, उनकी ज़बान से सच्चाई टपकती थी। वो जो भी कहते थे सिद्क़ की बुनियाद पर कहा करते थे। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुझे कोई भी प्यारा और महबूब नहीं था, और न ही मेरी नजरों में कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बड़ा था। यानी इंसानों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर वो किसी को बड़ा नहीं समझते थे। और फिर इस मोहब्बत की कैफियत क्या थी, इस मोहब्बत का रोबो दबदबा क्या था, इस मोहब्बत की वजह से कैफियत कल्बी क्या थी। तो अब आप सुनिए, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़ार के बाइस मैं इस बात की ताकत नहीं रखता था कि मैं आंखें भरकर अपने आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकूं। यहाँ तक कि अगर मुझसे कोई ये कहे कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये मुबारक को बयान करो, तो मुझे बयान करना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उस मोहब्बत का रोबो दबदबा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़ार और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का रोब इतना दिल पर था हजरत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, कि आप रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को जी भर करके या रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को टिकटिकी बांध कर देख नहीं पाते थे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जबकि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सबसे प्यारे और सबसे बड़ा अगर इंसानों में वो किसी को तसव्वुर करते तो वो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसव्वुर करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें हज़रत मालिक बिन सनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलील क़द्र सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने का जज्बा रखने वाले सहाबी हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत में जान कुर्बान करने वाले सहाबी हैं। लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस जानिसार सहाबी, नौजवान सहाबी की कैफियत क्या है, इसे आप समाअत फरमाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ग़ज़वे ओहद के मौके पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक जख्मी हुआ। हज़रत मालिक बिन सनान रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने आगे बढ़ करके
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से निकलने वाले खून को चूस लिया। कुरान कहता है हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम, तुम पर मुर्दार और खून हराम किया गया। लेकिन हजरत मालिक बिन सनान रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से निकलने वाले खून को चूस लेते हैं इस ख्याल से कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खून कहीं जमीन पर न गिर जाए, और साथ ही साथ उस खून को चूस कर वो फेंक नहीं देते कि कहीं ऐसा न हो कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक पर किसी का पैर पड़ जाए। हज़रत मालिक बिन सनान रदी अल्लाह ताला अन्हु उस खून को पी लेते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस अपने आशिक के इस अमल की इत्तला मिली तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, जो शख्स किसी ऐसे आदमी को देखना चाहे जिसका खून मेरे खून से मिला हुआ हो तो वो मालिक बिन सनान को देख ले। अल्लाहु अकबर। उसके बाद हजरत मालिक बिन सनान रदी अल्लाह ताला अन्हु निहायत बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते हैं और अपनी जान कदम नाज़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करते दिखाई देते हैं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कमाल का इश्क था उन नौजवानों के दिल में। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस तरह से कुट कुट के भरी हुई थी कि निगाहों में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और था ही नहीं। इसी तरीके से आप अंदाजा लगाएं, हजरत साद इब्न रबी जंग ओहद के अंदर सख्त जख्मी हुए। जंग के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उबई इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि जाओ जरा हजरत साद की खबर लेकर के आओ। वो हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश में निकले। जख्मों से निडाल हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने पा लिया। उसके बाद महसूस किया हजरत उबई इब्न काब ने कि हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु पर नज़ा का वक्त है। उस वक्त उन्होंने हजरत साद से कहा, तुम्हारा कोई पैगाम हो तो दो। अब पैगाम सुनिए। हजरत साद रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान को मेरा पैगाम दे दो। और वो पैगाम क्या है? वो पैगाम ये कि अगर तुम्हारी जिंदगी में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ पहुंच गई तो याद रखना खुदा के हुजूर तुम्हारा कोई उज्र कबूल नहीं किया जाएगा, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में हाजिर होना ये तुम्हारे लिए बहुत ही तकलीफ दे, और परवरदिगार जल्ल जलालहू को मुंह दिखाना ये तुम्हारे लिए बेपनाह मुसीबत से भरा हुआ होगा। नज़ा के वक्त इंसान को अपनी फैमिली याद रहती है, रिश्तेदार याद रहते हैं, लेकिन नौजवान सहाबी रसूल के दिलो दिमाग पर कोई और छाया हुआ नहीं था। ऐसी सिचुएशन में कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एवज जान जाने आफरी के सुपुर्द करने का वक्त आया और जख्मों से निढाल और नज़ा के आलम में है, तो हजरत उबई इब्न काब रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये पैगाम देते हैं कि मेरी कौम से कहना कि तुम्हारे होते हुए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। यानी तुम हुजूर पर कुर्बान हो जाना, बीवी बच्चों की फिक्र न करना, रिश्तेदार खानदान की फिक्र न करना, माँ बेटे की फिक्र न करना, माँ भाई की फिक्र न करना। ये जान है ही इसलिए कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के कदमों पर कुर्बान कर दी जाए। ये कैफियत थी हजरत साद रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु की।